Okay, you can start with the prayers. Yes, Prabhu. Mataji, you want to do the prayers? Yes, Prabhu can. You. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रीला प्रभुपाद की जय Jai. अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय So thank you very much for coming on board. We are happy to be with you all again. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ फिर इस सत्र में जुड़ने से। So anybody have any, you have some questions? Yes, Prabhu, I have two questions that are there. So, Mataji, if I share my screen, will I be able to share maybe just for a little while and then I show the questions and then you share it again? Should be possible, right? यस प्रभु You must allow Okay. him to share. Yeah, Mataji, if you can just allow me to share my screen once. Maybe you just make me the host again and then I make you the host again. श्योर प्रभु यस प्रभु Yes. Yeah. So the first question today actually has been raised by Mayan and Ankita. They have confirmed to me that they should be joining in soon. So the question is, what is the quality of a devotee? Why did Lord Krishna share the Bhagavad Gita with Arjuna and no one else? What qualities of Arjuna helped him receive, meaning understand correctly the message of the Bhagavad Gita? I will translate in Hindi. एक भक्त के गुण क्या हैं? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को अर्जुन के साथ क्यों साझा किया और किसी और को नहीं? अर्जुन के किन गुणों ने उन्हें गीता का संदेश अर्थात सही ढंग से समझने या प्राप्त करने में मदद की? So Prabhu, I'll just pass on the host back to Pavitra Mataji. Prabhu, is it okay, the question? No problem. Yeah, okay. Any question is okay. Yeah. So I will just make Mataji the host again. Mataji, you are.
So very nice. She is asking very nice questions. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है. So she says, what are the qualities of the devotee? कि हमारे भक्तगण उनकी क्या खूबियां हैं, उनमें क्या गुण होते हैं भक्त में. So the quality of the devotee जो भक्त के गुण हैं is explained in this verse. ये समझाया गया है इस श्लोक में. You can go to 11, 10, 6. Yes, Prabhu. हम श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो के 10वें अध्याय में जा रहे हैं. So these are the qualities of a person who is a devotee. और ये गुण अब हम देखेंगे जो एक भक्त में क्या गुण होते हैं, ये हम छठे श्लोक में यहाँ पे देखेंगे. 6 श्लोक, राइट प्रभु? Yeah, 10, 6, 11, 10, 6. 10, 6, yes. Shall we read the translation, प्रभु? Correct. Please read. हाँ, मैं शुरू करता हूँ, फिर आप और लोगों को भी हम साथ में पढ़ेंगे. गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और अपने को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए. उसे सदैव सक्रिय रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए. उसे पत्नी, बच्चे, घर तथा समाज सहित समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए. उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए और उसे कभी भी न तो पथभ्रष्ट होना चाहिए न मोहग्रस्त. सेवक या शिष्य में सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए. उसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए. हरि बोल. Can you go to 11, 11, 29, 32? Yes, Prabhu. अब हम श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में ही रहेंगे, मगर हम 11वें अध्याय में जाएंगे और 29वें श्लोक से देखेंगे इसको. उनतीस से 32वें श्लोक तक हम देख रहे हैं अभी. Prabhu. 29 to 32, Prabhu. Correct. Yes, Prabhu. ये वाला भी मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं और नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा. लंबा है ये. भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता. दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है. उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है. वह समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है. इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है. उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं. उसका व्यवहार सदैव मधुर, मृदु तथा आदेश होता है. वह स्वामित्व संग्रह भाव से मुक्त रहता है. वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्य कलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है. इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है.
संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पा ली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों को कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, अतएव कभी किसी को ठगता नहीं। प्रत्युत वह सबों का शुभैषी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं, उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरि बोल। So you finish? Yes, Prabhu, I think so. Very good. So these are all the qualities of a devotee. तो आप देखिए, ये सारे एक भक्त के गुण हैं। This is also further explained in the Bhagavad Gita, chapter 16, text 1 to 3. ये भगवत गीता में भी विस्तार में बताया गया है। अब हम भगवत गीता में जा रहे हैं। हम 16वें अध्याय में जाएंगे और श्लोक 1 से 3 श्लोक तक इसको देखेंगे। So these are the qualities of a devotee. एक भक्त के क्या गुण हैं, ये हम देख रहे हैं। प्रशांति, आप पढ़ना चाहेंगे? आप सुन सक रहे हैं हमको? जी जी जरूर। भगवान ने कहा, भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि बोल। Can you go to 5:18-12, please? अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, 5वें कैंटो के Go to the purport. 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जाएंगे और उसके तात्पर्य को देखेंगे। So here there are 26 good qualities of the devotee. यहाँ पे भक्त के 26 जो गुण हैं उसके बारे में हम विश्लेषण देखेंगे।
हाँ, Can you और read that to प्रशांत understand जी, आप qualities? बने हुए हैं अगर तो वो 26 गुण पढ़ सकते हैं। प्रभु, मेरी वाइफ पढ़ना चाहती है, सुनैना। अच्छा। प्लीज जी, वो भी ज्वाइन हाँ हुई अभी। हाँ, सुनैना माता जी, नमस्कार, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, आप देख सकती हैं माता जी, ये हमको यहाँ से पढ़ना है जहाँ से आपको 1 नंबर गुण दिख रहा है, वह सबों पर दयालु होता है। हाँ जी, मैं देख हाँ सकती हूँ। हाँ हाँ, वह सबों पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सब पर समभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, वह उदार होता है, वह मृदु होता है, वह सदैव सच्च रहता है, उसकी संपत्ति नहीं होती, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह शांत होता है, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वह विनम्र होता है, वह स्थिर चित्त होता है, वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबों का आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह सखा होता है, वह कवित्व पूर्ण होता है, वह पटु होता है, वह मितभाषी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So these are the qualities of the devotee. तो ये भक्तगण के गुण हैं। Hmm? So the next question is that why was Arjuna chosen? Huh? हाँ, अगला प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता का संदेश देने के लिए। Can you go to 4.3 Bhagavad Gita? अब हम भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में जाएंगे। Can read the Sanskrit, Pavitra. The fourth one, Prabhu, or the third one? 4.3. 4.3. Okay. Okay. Chan. Yes, Prabhu. सैवायं मया तेध्या योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तु तन्मम Uttamam. Rahasyam. उत्तमं Tad Uttamam. रहस्यं चेति उत्तमम्। Read the translation, please. अनुवाद। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। Okay, good. So you see here, the qualification why Arjuna received the message was one, because he was first a devotee, and second, he was a very dear friend. तो आप देख सकते हैं 2 कारण यहाँ कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्यों चुना। पहला ये कि अर्जुन उनके भक्त थे, दूसरा उनके परम मित्र थे। Bhaktosi me shakha cheti. भक्तो असी में सखा चेती, आप देख सक रहे हैं ऊपर श्लोक में। So the qualification to receive this knowledge is that you must be firstly a devotee of Krishna, secondly you must be his friend. तो आप देखिए कि ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए जो 2 चीजें अनिवार्य हैं, एक आपको भक्त होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे आप श्री कृष्ण की मित्रता को देख रहे हैं। So if you are not a friend and if you are not a devotee of Krishna, then you don't qualify to receive this message. तो अगर आप भक्त नहीं हैं या मित्र के तौर पे नहीं देख रहे हैं, तो फिर ये ज्ञान हासिल करने के लिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं।
अधिकारी नहीं है. So you can see here that this message was not only received by Arjuna only, you know. तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भगवत गीता का जो संदेश था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन को ही मिल रहा था. So when Arjuna, I mean when this conversation was going on, जब ये then जब ये वार्तालाप चल रहा था, so this conversation was not heard only by Arjuna and what do you call that, Krishna only talking. Others also heard this. जब ये वार्तालाप चल रहा था, तब कृष्ण और अर्जुन के अलावा और भी लोग इसको सुन रहे थे. So this message was also relayed to Vyasadeva, who also heard it. ये जो संदेश था, ये व्यासदेव जी ने भी सुना. Anyway, Vyasadeva is the one who gave the mercy to, what's his name, Sanjaya. Sanjaya was hearing this whole thing. और व्यासदेव जी ने कृपा रखी अपनी संजय के ऊपर, जो संजय ये सारा कुछ देख पा रहे थे दिव्य दृष्टि से. So if Sanjaya heard it, what about his guru Vyasadeva? He will not hear. तो अगर संजय इस संदेश को देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, तो व्यासदेव जी तो उनके गुरु थे, तो क्या वो नहीं सुन पा रहे थे? So you can see in Bhagavad Gita 1877. अब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में जाएंगे और हम 77वें श्लोक में देखेंगे. $77, no? Yes, Prabhu. Yes. राकेश जी, आप सुन सक रहे हैं हमको, पढ़ना चाहते हैं? शायद सुन नहीं सक रहे हैं. एकता माता जी, आप पढ़ना चाहते? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी. कौन पढ़ना चाहता है? पढ़िए. मैं पढ़ती हूँ. हाँ, पढ़िए माता जी. हे राजन, भगवान कृष्ण की अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ. तात्पर्य? एक मिनट रुक जाइए माता जी. Yeah. Shall we read the purport, प्रभु? Yes. हाँ माता जी, पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए. हाँ. एक मिनट. एक मिनट माता जी. हाँ, पढ़िए. ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था. निसंदेह ये कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था. यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे. वे भगवान के परम भक्तों में से थे. वो कृष्ण के शाक्यत वेश अवतार माने जाते हैं. व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे. So you see here that Arjuna and Krishna were talking, but he was heard by Sanjaya, Vyasadeva. तो आप देख sorry प्रभु, go ahead. So it is not that only Arjuna and Krishna the one who heard this. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ अर्जुन और कृष्ण जी के बीच ये वार्तालाप चल रहा था, और भी लोग इसको सुन रहे थे. यहाँ पे आप देख रहे हैं संजय भी सुन रहे थे और व्यासदेव के पास भी ये समझ आ रहा है. And Vyasadeva wrote this all down. How is it possible if we don't know, he can't hear it, how did he write this down? और व्यासदेव जी जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है, अगर उनको नहीं सुनाई दे रहा था तो कैसे लिख सकते थे वो? So those who are actually qualified, like Arjuna, being a devotee of Krishna and his friend, then yes, he can read, he can understand this Bhagavad Gita. तो और भी जो लोग हैं अर्जुन के जैसे, जो भक्तगण हैं और जो
मित्र के रूप में श्री कृष्ण जी को देखते हैं, वो सब गीता के संदेश को समझ सकते हैं। Others cannot understand, not possible. बाकी लोग नहीं समझ सकते, ये संभव नहीं है। 1867. अब हम इसी अध्याय में रहेंगे। हम 67 श्लोक नंबर में जा रहे हैं। एकता माता जी, आप ये भी पढ़ना चाहती हैं इस वाले को भी? बिल्कुल हाँ, 1 मिनट ऊपर आने दीजिए। करना पड़ेगा। You can read a translation. हाँ, थोड़ा आप माता जी थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं क्या स्क्रीन को? हाँ, अब दिख रहा है माता जी, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, एकता माता जी पढ़िए। हाँ, यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझमें द्वेष करता हो। हरि बोल। तात्पर्य, Right. So you can see from here that those people who are not devotee, who are envious of Krishna, who are not austere, these people cannot understand Krishna, not possible. हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, या जो एकनिष्ठ नहीं है, न तो संयमी है, या उनसे द्वेष करते हैं, उनके लिए इस ज्ञान को समझना असंभव है। That's why many people who are reading Bhagavad Gita, but they're not devotee and Krishna's bhakta. That's why they cannot understand. हाँ, इसलिए बहुत से लोग मिलेंगे जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो सही रूप में कृष्ण जी के भक्त नहीं है। You can read the purport. हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ सकती हैं माता जी? हाँ जी बिल्कुल। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनात्मक में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें ये परम गुहा ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का एक शौक है, उससे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों की दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वे भक्त नहीं है तो वे कृष्ण को नहीं समझ सकता, और यदि वे अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावनात्मक कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वे उससे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। So you can see here, you want to learn this, these are the qualifications. If you are envious, if you are not devoted to Krishna, तो आप देख सकते हैं कि ये सब गुण है भगवत गीता के ज्ञान को सही तरह से समझने के लिए। आपको द्वेष नहीं रखना है श्री कृष्ण जी के लिए, आपको उनका शुद्ध भक्त के साथ बने रहना होगा, फिर ही आपको इसका संदेश और असली मतलब समझ आ पाएगा। Can you go to Srimad Bhagavatam as Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 24:313? Yes, Prabhu. So you see, this is the qualification. It's not that everybody buys the Bhagavad Gita and therefore you will become, you can go and try to learn it somewhere and that's it. No, you cannot. You want to learn Bhagavad Gita, you must go to someone who is a devotee. तो आप भगवत गीता ऐसा नहीं है कि आप बाजार से गए और खरीद लिया और उसके बाद आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। आपको भक्तों के साथ जाके उनके साथ बैठ के इस ज्ञान को समझना होगा। So and also we cannot be envious of God, Krishna. और आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष भी नहीं रख सकते।
This is what's going on. Although they know Krishna, but they think that Krishna is an ordinary person. अभी यही हो रहा है, लोग कृष्ण जी को जानते हैं मगर ये समझते हैं कि कृष्ण जी एक साधारण मनुष्य के जैसे हैं। Can you read this verse? कोई और पढ़ना चाहता है? Can you read the purport? You read the verse and then read the purport. कोई और आगे Yes, आगे Prabhu. पढ़ना चाहता है? हाँ, मैं ही आगे पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़िए, आप एक बार पढ़िए, फिर हम किसी और से पढ़वाएंगे। पढ़िए माता Somebody, जी। they have raised their hands. शिव Maybe जी they ने want to कहा- अच्छा, read. एक मिनट माता जी, एक मिनट, मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, किसी ने हाथ रेज किया है। अंकिता अ, प्रशांत, अंकिता माता हाँ। जी, प्रशांत प्रभु। अंकिता माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ हाँ लेती माता हूँ। जी, हाँ माता जी, पढ़िए। शिव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूँ या व्यासपुत्र शुक्रदेव गोस्वामी जानते हैं तथा व्यासदेव जानते हैं अथवा नहीं जानते। इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है, भौतिक बुद्धि, चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। Shall we भक्ति read में the 9 purport, प्रभु? Yes, yes. हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। भक्ति में 9 विधियां सम्मिलित हैं, यथा श्रवण, कीर्तन, भगवान विष्णु की लीलाओं का स्मरण इत्यादि। जिसने भक्ति को अंगीकार किया है वही श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, क्योंकि अध्यात्मवादी परमहंस के लिए यह एक निष्कलंक पुराण है। इस कार्य के लिए यह तथाकथित टीकाएं व्यर्थ हैं। वैदिक आदेशानुसार यस्य देवो परा भक्तिर्था देवे तथा गुरु। सारे वैदिक ग्रंथों का मत है कि श्रीमद् भागवत को किसी भागवत से सीखना चाहिए और इसे समझने के लिए शुद्ध भक्ति करनी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत को तथाकथित विद्वान पंडित या व्याकरण नहीं समझ सकते। जिसने शुद्ध कृष्ण भावना विकसित कर ली है और शुद्ध भक्ति या गुरु की सेवा की है वही श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। हरि हरि बोल। बोल। So you can see how this subject matter is very confidential, you know. तो आप देख सकते हैं ये जो सारा सब्जेक्ट है ये बहुत रहस्यवादी है। It is not because you are big pandit you can understand this thing. That's not possible. ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं तो आपके लिए आराम से समझ जाएंगे इसको। Krishna spoke to Arjuna. Arjuna was not a pandit. कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, अर्जुन तो पंडित नहीं थे। Understand not? समझ रहे हैं आप? Can you go to Srimad Bhagavatam 332:29? 332:29. Yeah. हम अब श्रीमद् भागवतम में तीसरे कैंटो में 32वें अध्याय में जाएंगे। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लें। बत्तीसवें अध्याय के हम 29वें श्लोक पे हैं। Can you read the translation? अंकिता माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं ये वाला भी? पढ़िए एक और। हाँ जी, यस। हाँ। तात्पर्य नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन। मैंने महत्व तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि, चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। Which verse is this? 332:29. 39. ओके प्रभु। माता जी एक मिनट, हाँ मैं 39 पे जाती हूँ। अभी हम जी, 39वें श्लोक पे जाएंगे। हाँ, एक मिनट दीजिएगा। जो जितना सांस है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। 39 to 43. Read this verses. माता जी पढ़िए, ये भगवान कपिला ने कहा। जी।
भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। न ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। ये श्लोक भी पढ़ना है। अच्छा, ये उपदेश ना तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, ना ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। Arya. Purport. Go to the purport of that verse. वर्स Yeah. 40 प्रभु। Yeah, verse 40 ओके, purport. हाँ, 40वें श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। जी। हाँ। जो लोग सदैव अपने जीवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को समझने के अधिकारी नहीं हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथा कथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और अंशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचाने का एक सा पद स्थिति नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशेष प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंध को जानने की शिक्षण विधि है। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य प्रकार के अनुभव करते हैं। अतः यह श्रेयस्कर होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश ना दिया जाए। सामान्यतः भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम, यश तथा लाभ के पीछे लगे रहते हैं। अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेषतः कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची ना भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची ना लगे, किंतु वे अपने पत्नी, बच्चों तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपयुक्त दोषों से कलमशग्रस्त ना हो, तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता है या अभक्त है, तो वह कृष्ण चेतना के दर्शन को कभी नहीं समझ पाएगा। हरि बोल। हरि बोल। Next verse, yeah. हाँ, ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। हरे कृष्णा। 42. हरि बोल। Read the 42 with the purport. मैं पढ़ूं? Translation read already. Yeah. यस प्रभु। Yeah, read the purport. Read the purport. तात्पर्य। प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता है नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है और उसे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने से 64 भक्ति कार्य हैं, जिनमें कुछ है भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न न पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है वह भक्त है।
मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करे। उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपितु यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए और ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पार से निकलने का एकमात्र समाधान यही है। यही वास्तविक लोक कल्याण है, क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शुश्रूषावीर का शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत रहता है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। बहिर्जात विरागाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकल्पों से विरत तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, न केवल मनुष्यों की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। सुचेय का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। दियताम शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे, स्वयं व्यावसायिक न बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के प्रामाणिक गुणों को देखे जिसे वह दीक्षित करने जा रहा है। अयोग्य व्यक्ति दीक्षित न हो। गुरु अपने शिष्य को इस तरह परीक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। इन 2 श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है। जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया है वह पहले से भक्त पद को प्राप्त है। यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है तो उसे अब भी इन प्रतिबंधों को पूरा करना होगा जिसे वह कुशल भक्त बन सके। हरि बोल। So you see here, this is all very clearly explaining the position of a devotee, the qualities of the devotee, how to become a devotee. You must surrender to a spiritual master. If you don't have a guru, you cannot be a devotee. तो आप देख सकते हैं इन श्लोकों में बहुत सीधा विश्लेषण किया गया है कि भक्त के क्या गुण होने चाहिए, भक्त को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि बिना एक गुरु के भक्त अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। एक गुरु की आवश्यकता है और उस गुरु के प्रति उस भक्त को समर्पित होना पड़ेगा। You can go to 1087. अब हम Prabhu, do we need to read 43? What? 43, never mind. Go to 1087:33. Yes, Prabhu. अब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में जा रहे हैं। 87th चैप्टर में जाएंगे, अध्याय में। इंदिरा माता जी, आप देख पा रही हैं बैरकपुर से? आपको दिख रहा है माता जी? आप पढ़ना चाहेंगी माता जी? पढ़ सकेंगी? अच्छा माता जी, अभी दिखाएंगे हम आपको। एक बार आपके स्क्रीन पे आएगा, फिर आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। Thirty-three, Prabhu. Yes.
हाँ, ये 33वें श्लोक का हम अनुवाद पढ़ेंगे। मन ऐसे उच्च श्रृंखल घोड़े की तरह है। इंदिरा माता जी, आप देख पा रही हैं? हाँ, हाँ, आप पढ़ने की कोशिश करेंगी? नहीं आ पा रहा। नहीं देख पा रही हैं आप? नहीं। मैं पढ़ती हूँ प्रभु। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। मन ऐसे उच्छृंग घोड़े की तरह है जिसको अपने इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति के वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान है जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। तात्पर्य, Yes. ईश्वर का नहीं, shall we read the purport, प्रभु? Yes. ओके, हाँ, पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, ईश्वर का प्रेम जो कि मुक्ति का पक्व फल है, प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए सर्वप्रथम विद्रोही भौतिक मन को वश में लाना होता है। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन है, किंतु जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को अपनी लत को हटाकर आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर आनंद का आस्वाद करने लगता है तो वह ऐसा कर सकता है। किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु की ही कृपा से ये उच्चतर आस्वाद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दिव्य जगत के आश्चर्यों को देख सकने के लिए शिष्यों की आंखें खोल देते हैं, जैसा कि गायत्री स्तुति में देवी ज्ञान हे के बीज मंत्र में है। मुंडक उपनिषद का कथन है, विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छत् समित्पानि श्रोत्यायम ब्राह्मणिस्तम। हाँ, इन बातों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने हाथ में संविधा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों में परंपरागत होता है और परम सत्य में दृढ़ भक्ति रखता है। तथा कठोपनिषद में घोषणा है, नेशा तार्केन गति मरानेनया प्रोक्तान्योनेम सृजाना श्रेष्ठा। हे बालक, यह अनुभूति तर्क द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे समझ सकने में सक्षम शिष्य से अत्यधिक योग्य गुरु ही को ही बतलाना चाहिए। प्राय वैष्णव जन गुरु के प्रति जो शिष्य परंपरा की प्रमाणित पंक्ति में चला आ रहा है, समर्पण भाव की महत्व की अवहेलना करते हैं। इसकी बजाय अपनी योग्यता पर निर्भर रहकर अभिमानी योगी तथा ज्ञानी जन विश्व पर रोब जमाने के लिए ऊपर दिखने वाले अपनी सफलता प्रदर्शित करते हैं, किंतु इनका ये यश क्षणिक होता है। विद्याधना अभक्तानां प्रणायावधि मानना अक्षीण वासनहम राजम दृश्यति पुनरुक्तितम। जो अभक्त प्राणायाम जैसी विधियों में अपने मनों को लगाते हैं, वे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह रहित नहीं हो पाते। अतः हे राजन, अपने मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उदय होती देखी जाती हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु तथा वैष्णवों का विनित दृढ़ संकल्प भक्त अजय मन पर आसानी से विजय पा लेता है। उससे मन को स्थिर बनाने के लिए ना तो अष्टांग योग करने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही अन्य साधन अपनाने पड़ते हैं। सर्वचेतद्र गुरी भक्ता पुरुषो हाशर जयते। एकमात्र गुरु भक्ति के द्वारा मनुष्य इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर जाता है। अन्यथा एक अभक्त अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु को जीतकर अपने मन को वश में नहीं कर सकता। जो लगाम से छूटे घोड़े की तरह स्वच्छंद दौड़ता रहेगा, उसे अनेक आध्यात्मिक विधियों का पालन करने में अपार चिंता भोगनी पड़ेगी और अंत में एक विशाल भव सागर से पहले ही की तरह भूला भटका रहता रहेगा। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत उपयुक्त है। वे व्यापारी जो महान लाभ की इच्छा से जल्दी में समुद्र यात्रा करते हैं, किंतु अपनी नाव के लिए योग्य नाविक नहीं लेते, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। भागवत में अनेक स्थलों पर प्रमाणित गुरु की महत्व घोषित की गई है। अतः 11वें स्कंद के निम्नलिखित श्लोक में आप ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी, आप ट्रांसलेशन पढ़िए खाली। हाँ, जीवन में सारे लाभ दिलाने वाला मनुष्य शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि
ये विरल उपलब्धि है। इस मनुष्य शरीर की उपमा सुनिर्मित नाव से दी जा सकती है, जिसका कर्णधार गुरु होता है और भगवान के आदेश मार्ग से अनुकूल वायु के तुल्य होता है। इन सभी लोगों का पर विचार करके जो मनुष्य अपने मनुष्य शरीर का उपयोग भव सागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे अपनी ही आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। अतएव मनुष्य जीवन का संजीदगी से उपयोग करने वाले का पहला कर्तव्य यह होता है कि वे ऐसे गुरु की खोज करे जो कृष्ण भावनात्मक में उसका मार्ग दर्शन कर सके। श्रीधर स्वामी स्तुति कहते हैं, हे दिव्य आनंद में गुरु, जब मेरा मन आपके चरण कमलों पर स्थान पालेगा तो मेरी आध्यात्मिक साधना का श्रम दूर हो जाएगा और अब आपकी कृपा से मुझे परम सुख का अनुभव होगा। हरे कृष्ण। Can you go from here? You can see if you want to progress spiritually, you must take shelter of a spiritual master, like Arjuna did. Arjuna wanted to learn this science, so he approached Krishna, who became his guru. तो आप देख सकते हैं इससे कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आपको प्रगति करनी है तो आपको एक प्रामाणिक गुरु की शरणागत में जाना पड़ेगा ही। और अगर आप देखिए भगवत गीता में इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण की शरणागत में गए और उन्होंने स्वीकार किया अपने गुरु के हिसाब से और उसके बाद ये ज्ञान को प्राप्त किया। Arjuna said in 2:7 Bhagavad Gita, I have now surrendered to you and I'm your Shishya. Kindly tell me what is best for me. अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में देखेंगे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहा और अपने आप को शरणागत कर दिया। अब हम किसी और को पढ़ने के लिए बोलेंगे। माता जी लोगों ने पढ़ा, कोई और पढ़ना चाहता है? So here in this Bhagavad Gita, Arjuna is surrendering to Krishna and Krishna became his guru. यहाँ पे आप देखेंगे अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरणागत में वो आए और उनको अपना गुरु माना। So if we don't want to take shelter of a guru, this Bhagavad Gita we cannot understand. अगर हम गुरु के शरणागत में नहीं आए तो ये भगवत गीता को हम नहीं समझ सकते। It is not that Bhagavad Gita is a talk between two friends. ऐसा नहीं है कि भगवत गीता सिर्फ दो मित्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। प्रशांत जी आपने हाथ उठाया है, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ प्रशांत जी पढ़िए। मैं अपनी read the translation. Yeah? हाँ ट्रांसलेशन, ही इज रीडिंग द ट्रांसलेशन प्रभु। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। थोड़ा ऊपर करने बोले, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। So you can see here Arjuna is saying in Sanskrit, Shishyeste ham sadimam tvam prapanam. Shishya means now I want to be your disciple. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन, जो संस्कृत का श्लोक आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। So unless a person surrenders like a disciple to a guru, he cannot learn these things. तो देखिए आप जब तक एक आदमी भक्त होके अपने गुरु के लिए के शरण में नहीं जाता तब तक ये ज्ञान को वो लाभ नहीं कर सकता। It is not possible because if you are very proud and think you know everything, then you cannot understand these things. ये इसलिए भी संभव नहीं है कि अगर आपके अंदर बहुत घमंड है, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो फिर आप ये ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। 7:25 अब हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में जाएंगे और 25वें श्लोक को देखेंगे। प्रशांत जी आप बने रहिए हमारे साथ, ये वाला भी पढ़ सकते हैं आप। 25वें श्लोक में जाएंगे।
सेट नहीं हो रहा है बार बार। वो तो खुद ही वो नीचे कर रहे हैं स्क्रॉल कर। नहीं इतनी आवाज थोड़ी जा रही होगी। मेरे ख्याल से इन्होंने म्यूट कर रखा होगा। पता नहीं। नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है विनोद माता जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुरली से। हाँ हाँ प्रशांत जी, आप देख सकते हैं मैं मूर्खों तथा। जी हाँ, प्रभु। हाँ। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करेंगे प्लीज। मैं उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। हरि बोल। So you can see here, those who are not devotees, Krishna cover himself. You cannot go to him. तो आप देख सकते हैं जो भक्त नहीं है, कृष्ण जी अपनी माया शक्ति से उसके ऊपर वो कवच डाल देते हैं, तो वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। And you start thinking Krishna as an ordinary person. Can you go 9:11? हाँ, और आप ये समझने लगते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। अब हम 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में जाएंगे। Nine 11, huh? क्या है वो कृष्ण में? अवजानन्ति ममुद्धा मनुष्यं दानमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम Yeah, भूतमहेश्वरम्. actually I'm having some yeah. परशुराम प्रभु, can you mute yourself please? Yeah, thank you. Can someone read this? हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है? I think Gaurangi is here. Can she read? गौरांगी माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? सुन सकते हैं आप हमको? Prabhu, yes, Prabhu, I'll try. Although Yes. Radha Sir is with me, I'll try, Prabhu. No problems माता जी, please. जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरि बोल। So you see, if you think Krishna is an ordinary person, अगर आपको ये लगता है कि कृष्ण भगवान एक साधारण मनुष्य है, then you cannot understand Bhagavad Gita. Not possible. तो फिर आप भगवत गीता को नहीं समझ सकते, संभव नहीं है। So this is why so many people are Bhagavad Gita, but they don't know what is Bhagavad Gita. हाँ, इसलिए देखिए कितने लोगों के घरों में उनके पास भगवत गीता है, मगर वो भगवत गीता के असली ज्ञान को नहीं समझ सकते। Because they think Krishna is an ordinary person. क्योंकि वो कृष्ण जी को साधारण मनुष्य समझते हैं। So when you don't surrender to Krishna and don't accept him as you don't become his devotee and his friend, then this is impossible. हाँ, तो जब तक आप श्री कृष्ण के शरणागत में नहीं आएंगे, जब तक एक भक्त नहीं बनेंगे, जब तक उनको मित्र के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। And you don't have a guru to teach you. और अगर आपके पास गुरु नहीं है जो आपको सिखा सके, then these things will not be understood. तो इस चीज को आप नहीं समझ सकते। You cannot understand. See, you can go to 647 purport. Yes. Yashadeve para bhakti. छठे अध्याय में जाएंगे, छठे अध्याय के 47वें श्लोक में जाएंगे और उसके तात्पर्य में जाएंगे। गौरांगी माता जी, आप अगर जुड़ी हुई हैं तो ये वाला भी 647 Yashadeve para bhakti. Purport. Towards the end of the purport.
Hello. She want to start reading. Okay, you got it? 647. Yeah, almost there, bro. Almost there. You got it? 647. You Yes, see, yes, purport? Prabhu, yes, Yes, Prabhu. Deve Para Bhakti. All right, read that. जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। Read on. Read on. Read on. भक्ति रस्य भजना तदि हा मूत्रो अधनी। I'm sorry, I'm not able to read this one properly. आप ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनमें योग की परम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भगवान अमृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। Very good. So therefore, you can see the qualification to get this knowledge is to have implicit faith in Guru and Krishna. तो आप देख सकते हैं इस भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो चीजें अनिवार्य है कि एक तो आपको गुरु और भगवान श्री कृष्ण दोनों के प्रति बिल्कुल शुद्ध भक्ति और शुद्ध रूप में आपको शरणागत होना पड़ेगा। And the Guru must be coming down in an authorized parampara. और जो गुरु है आपके ये परंपरा के हिसाब से आने चाहिए, पारंपरिक होने चाहिए और प्रामाणिक होने चाहिए। If it doesn't come from the authorized sampradaya, there are only 4 sampradayas. सिर्फ 4 संप्रदाय हैं और इन 4 संप्रदाय के हिसाब से पारंपरिक रूप में वो गुरु होने चाहिए। So unless he comes from this authorized sampradaya, this knowledge cannot be given. जब तक वो इस पारंपरिक संप्रदाय से नहीं आते हैं आपके गुरु, तो इस ज्ञान को आप तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। And you see, there are 4 sampradayas coming, one from Lord Brahma, one is coming from Lord Shiva, one is coming from Lakshmi, and one is coming from the 4 Kumaras. These are the 4 authorized sampradaya. तो जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं वो एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरी है जो लक्ष्मी जी से आ रही हैं, तीसरी संप्रदाय है जो शिव जी से आ रही हैं और चौथी संप्रदाय है जो 4 कुमारों से आ रही हैं। So authorized, these are the 4 authorized sampradayas. तो ये 4 जो हैं वो संप्रदाय हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, जो प्रामाणिक हैं। Can you go to 6:3-2021? Yes, Prabhu. हम अब श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, 6ठे कैंटो में 3रे अध्याय में जाएंगे हम। There's no 5th sampradaya or 6th sampradaya. These are the only authorized sampradaya. हाँ, यही 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक हैं। And each sampradaya has a prominent acharya. और हर संप्रदाय में एक आचार्य है जो प्रोमिनेंट है। In Brahman sampradaya, the acharya is Madhvacharya. जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें जो आचार्य है वो माधव आचार्य है। In Shiva sampradaya, the acharya is Vishnu Swami. जो शिव संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य है वो शिव, what did you say? Prabhu, can you repeat? In the Shiva sampradaya, the acharya is Vishnu Swami.
विष्णु स्वामी जो है वो है मुख्य आचार्य शिव संप्रदाय के। In the four Kumara Sampradaya, the person in Acharya is Nimbakka Acharya. हाँ, निम्बक्का आचार्य जो है वो 4 कुमार में से जो प्रमुख आचार्य हैं उधर से जो आ रहे हैं डिसाइपल सक्सेशन पे वो हैं। In the Sri Sampradaya or Lakshmi Sampradaya, the Acharya is Ramanuja Acharya. हाँ, रामानुज आचार्य जो है वो प्रमुख आचार्य हैं श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से उत्पन्न होके आ रहे हैं। So this is how this knowledge is coming down from God. हाँ, ये इस तरह से संप्रदाय से जो ज्ञान है भगवान से इन संप्रदायों से आ रहा है। Can you read the purport of this verse? हाँ, ये इस श्लोक के हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आके पढ़ें। अब कौन पढ़ना चाहे? Parsuram can read. हाँ, परशुराम प्रभु आप पढ़ सकते हैं। Yes, bro. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा है। सर्व गुह्य तमम गुह्यात गुह्यतरम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें परम गोपनीय धर्म बतला रहा हूँ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। कोई यह पूछ सकता है, यदि यह सिद्धांत दिल्ली ही समझ सकते हैं तो फिर इसका लाभ क्या है? इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी किए है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमारों तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है। शिष्य परंपराएं 4 हैं, एक ब्रह्मा से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से और एक कुमारों से। हाँ, 1 मिनट प्रभु, 1 मिनट। चलने वाली, ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। शिव शंभु से चलने वाली परंपरा रुद्र संप्रदाय तथा देवी लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री संप्रदाय तथा कुमारों से चलने कुमार संप्रदाय कहलाती है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। यदि कोई इन 4 प्राप्त शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसका मंत्र तथा उसकी दीक्षा निष्फल है। वर्तमान समय में कई अपसंप्रदाय हैं, अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रमाणिक नहीं हैं और जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण तथा लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय है, क्योंकि मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। हरी बोल, कितना अच्छा पढ़ा प्रभु आपने। Can you go to the parampara list of our sampradaya in the introduction? Yes, प्रभु। अभी हम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में जाएंगे, वहां हम देखेंगे पारंपरिक गुरु की पूरी लिस्ट दी हुई है। So we are coming down from the Brahma, Gaudiya, Madhava Sampradaya. तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में गौड़िया माधवाचार्य की संप्रदाय से आते हैं और वो अभी आप देखेंगे। Yes, if this sampradaya is not there, then you cannot get this knowledge. तो ये अगर संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय के साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये ज्ञान हासिल करना मुश्किल है। As is said in the Padma Puran by Lord Shiva, sampradaya vihina he mantraste nispala mataha. तो आप देख रहे हैं जैसे आपने शिव पुराण में कि जब तक आप संप्रदाय के हिसाब से नहीं ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो ये निष्फल है, निष्फल। So you can see here our sampradaya, Krishna, then Brahma, then Vyasadeva, like this, no, Narada, and then Vyasadeva. आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, पढ़िए प्रभु, पढ़िए। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि। Okay, okay, yeah, okay. So you go down to the bottom. Go to the bottom. You can see here 32 is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. आप देख सकते हैं 32 नंबर में नाम है A.C. भक्तिवेदांत स्वामी
श्रीला प्रभुपाद की जय। So this person is our guru तो ये हमारे गुरु हैं and is coming down in the authorized chain. और ये पारंपरिक चेन में आ रहे हैं। So when you are connected to this sampradaya like this, then this knowledge will be fully revealed to you. तो आप जब ऐसे संप्रदाय से जुड़ेंगे तो जो ज्ञान है सब कुछ आपको धीरे धीरे वो जो रहस्य है वो आपको मिलता रहेगा। Everything will become very clear. सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। Bhagavad Gita 7:1. अब हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में पहले श्लोक में जाएंगे। परशुराम जी आप ये वाला भी पढ़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं? जी पढ़ता हूँ मैं। भगवद गीता ऐसी तो हम 7वें अध्याय में पहले श्लोक पे हैं। मय्या मनःपात योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हरि बोल। तात्पर्य ओके रीड। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावना वृत्त की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साय सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना यद्यन्तः भद्राणि विधुनोति सुहसताम नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभात् प्रयश्च ये चेतयेतर्नाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते।
विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भक्ति करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। क्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवत 1:2-17-21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। Hare Krishna. So what was the last part of the question? No, the last part was why. Just hold on, Prabhu. I'll just. What qualities of Arjuna helped him receive, meaning understand correctly the message of the Gita? I think I've already covered. explained Yes, that. yes, yes, Prabhu. So I think I've spent 1.5 hours almost explaining all these things. Yes, Prabhu. हाँ, प्रभु ने 1 से 1.5 घंटा बिताया ये सारी चीजों को समझाने में। Based on शास्त्रिक backing. हाँ, ये सब शास्त्र से में क्या लिखा हुआ है वो दिखा के। I hope I've explained it well enough for you to understand. Yes, आशा प्रभु। करते हैं कि आपको समझ में आया। अंकिता, मयन भी जुड़े हुए हैं आपके साथ आज? हाँ जी, वो भी हाँ, हैं। मयन का प्रश्न था। मयन, समझ में आया आपको? मयंक एक्चुअली उनका भी कॉल चल रहा है तो वो अभी हाँ, इस पल के लिए नहीं है, लेकिन ओके, उन्होंने बहुत ओके। अच्छे से सुना एंड हम्म, we are like, yes, we got the answer in a very explanatory way and very elaborated way. Thank Okay. you, Prabhu. Thank you so Thank much. you. Hare Krishna. हरे Hare कृष्ण। Krishna, Prabhu. I hope I don't have to spend another hour to explain the other question. Now, Prabhu, other question we will take now online. और किसी के कोई प्रश्न है? I mean, I have got 1 or 2 questions, but I What want are to those take. questions? Let us see what are those questions. You I read think it out. You read it out. Ram Okay. Prabhu has raised his hand. Maybe he has a हाँ. question. Yes, प्रभु yes. जी, Let's go to Ram Prabhu. Yes. प्रभु जी, मैं इस्कॉन से न्यू रिसेंटली जुड़ा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मतलब बाकी जो ऐसी बातें होती मुझे पता नहीं, हालांकि कि अलग अलग दुनिया में से बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसको सार्थक कैसे करें, मेरे को पता नहीं आध्यात्मिक ज्ञान, तो आप मुझे समझाए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है और क्या लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। Okay. Okay. So Prabhu, Ram Prabhu is saying he has been associated with ISKCON for a while, and his question is, why have we got this life as a human being, and what really is the purpose of this life? He understands that there are many yonis, 84 lakh yonis. So out of that, getting a human birth, he also understands a little bit of the fact that the human birth is rare, but he does not know beyond that, why have we got this human life and what should we do with that? So if there is something that you can share in terms of the answer. So the purpose of human life जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, is to actually we all have fallen down in this material world because of misuse of our independence. Can you go to 4:29:26? Prabhu 4. 4:29:26. 26. हम Yes, Prabhu. श्रीमद् भागवतम के चौथे कैंटो में जा रहे हैं
और प्रभु बता रहे थे कि हम सब भौतिक जगत में आए हैं और इस भौतिक जगत में मनुष्य के रूप में आने के बाद भौतिक जगत में हम गिर जाते हैं, क्योंकि हम सारे माया के जाल में फंस के हम गिर जाते हैं। चौथे कैंटो के हम 29वें अध्याय में हैं और हम अब 27वें श्लोक में जा रहे हैं। करेक्ट माता जी, कौन से श्लोक में जा रहे हैं अब? 26, 27. 26, Yeah, हाँ, correct, 26 और 27वें श्लोक में जा रहे हैं। कोई और जिसने नहीं पढ़ा है अभी पढ़ना चाहते हैं? नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु, आई एम स्टैंड बाय। हाँ, 1 मिनट देखता हूँ मैं, कोई और पढ़ना चाहता है तो। सुदेवी दासी, आप पढ़ना चाहती हैं? सुन सकती हैं हमको? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हाँ, पढ़िए माता जी। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सत्वगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। Can you read the next verse? दूसरा श्लोक पढ़िए माता जी। जो सतोगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। Can you go to the next verse? अगले श्लोक में हम जा रहे हैं अब 29वें श्लोक पर। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। हरि बोल। हरि बोल। So this is what's going on with us. तो आप देख सकते हैं ये चल रहा है हमारे साथ। हाँ, understand? So this is how we are going through different bodies for many lifetimes. तो आप देखिए भौतिक जगत में हम लोग कई सारे जीवनों के थ्रू जा रहे हैं, कई सारे शरीर हम ले रहे हैं। Can you go to 429, 36, 37? Yes, Prabhu. अब हम इसी अध्याय में रहेंगे। हम दूसरे श्लोक में जा रहे हैं, 36वें श्लोक पे। राम प्रभु, आप देख सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं? जी प्रभु जी। हाँ, आपने सवाल पूछा, आप पढ़िए, अच्छा लगेगा। हाँ। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को प्रकट कर सकता है। हरि बोल। So unless you surrender to Krishna through a guru, you cannot come out of this mess. तो जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाते और वो भी गुरु की शरणागत में आके, तब तक आप इस भौतिक जगत की इस मेस से, इस जंजाल से आप मुक्त नहीं हो सकते। Can you read the
Tapparya, is it? हाँ, यस प्रभु। राम जी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे, देख जी। सकते हैं। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता जीव बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। सुसंस्कृत का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्मा बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षा है। इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आशंकाएं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद शरणात्र में सीमा को कोई नहीं, आगे बढ़िए आप। हाँ, आगे बढ़िए। के रूप में, हाँ, जब के तक रूप में वर्णित है। के रूप में वर्णित है जब तक मन शुद्ध नहीं होता हो जाता है इस भौतिक स्थिति को से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ठीक है, आप अनुवाद पढ़िए। हाँ, जीव के भौतिक क्लेश। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ है भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता। अंतर्विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुओं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, जब तक अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर न निकाल जी थोड़ा ऊपर करेंगे बाहर न निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला है। यह जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लग कर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, अंत मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके उनकी ही सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करता है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है तो वह शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चिर दास है। जो भी वह भगवान वासुदेव की भक्ति करता प्रारंभ करता है उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्ता अवस्था कहलाती है। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। Can you go up some more? Finish, huh? No, no, Prabhu, little bit is there, I think. Oh, little bit there. मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह से अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तीर्थांजलि दे देता है। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार में से विरक्त प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना
वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा राम जी। Can you go to 3:25, 39, 40? अब हम श्रीमद् Yes, भागवतम Prabhu. में तीसरे कैंटो के में जाएंगे। Prabhu 329. 3:25. Okay, sorry. 25वें अध्याय में जाएंगे। 3:25, 39, 40. Okay, Prabhu. 39, 40। 39वें और 40वें श्लोक को पढ़ेंगे। And कोई और someone else, भक्तगण है, पढ़ना चाहता है? कोई और भक्तगण? someone else want to read? चैतन्य चरितमृत का या वही मद भागवतम को जगह जगह से कोट कर सुनैना माता जी मुनि ने का बताया। अपनी माँ को सुनैना माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? जी। हाँ माता जी। तो वही में हमारी जो पानी लीडर कुछ नॉर्मल Translation. हाँ, पहले हम अनुवाद पढ़ेंगे। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी। पढ़िए माता जी। इस प्रकार मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित Can you go to the next verse? किसी वस्तु के साथ समस्त कामनाओं को त्याग देता है, मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हाँ, Next verse. इसके next verse. अगला श्लोक भी पढ़ेंगे माता जी। आप बने रहिए। तात्पर्य नहीं, दोनों श्लोकों में तात्पर्य जिस तरह नहीं। अनन्य भक्त माता जी, अब हम 41वें श्लोक का शब्दार्थ पढ़ेंगे। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण आता है तो वो जन्म तथा मृत्यु के भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, I think our voice is समस्त breaking. सृष्टि का Can, आदि स्रोत our voice is breaking. Can someone else read again? हाँ, मैं पढ़ती Yes. हूँ माता जी, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। Can someone else read? आप पढ़िए पवित्र माता जी, पढ़िए एक बार यदि और। कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। हरि बोल। So this is the only way now. We have to go back to Krishna. तो यही एकमात्र तरीका है, हमको श्री कृष्ण के पास वापस वैकुंठ जगत में जाना होगा। If you don't have faith in Krishna, can you go to 9:3? हाँ। Bhagavad Gita. Yes, yes, अगर Prabhu. आपको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, Bhagavad Gita, 9:3. हम अब भगवत गीता में 9वें अध्याय में तीसरे श्लोक पे जाएंगे। Can you read that? कोई और पढ़ना चाहते हैं ये 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को? जी प्रभु, मैं पढ़ूं। पढ़िए प्रभु। हे परम तपस, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अंततः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरि बोल। Okay. So this is what will happen if you don't want to surrender to Krishna through a bona fide spiritual master.
You have to go on taking birth and dying and taking birth and dying, you know. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप श्री कृष्ण जी के शरण में नहीं आना चाहते हैं, वो भी एक प्रामाणिक गुरु से संबंध रख के, तो आपके साथ यही होता रहेगा कि आप भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहेंगे, इस चंगुल में आप फंसे रहेंगे। हाँ, जी प्रभु जी। टाइम ओके बड़ी जल्दी आई लो। so it is your choice. तो अब आपके ऊपर है कि आपको चयन करना है, If क्या you करना want चाहते to, हैं। if you want to keep taking birth and dying here, no problem. अगर आप बार बार यही जन्म मृत्यु और इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रहिए फिर आप। But if you are serious to get out, then there's only one way. लेकिन अगर आप सच में सीरियस हैं, आप भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है। That's what Krishna says in 1866 Bhagavad Gita. अब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में जाएंगे और 66 नंबर श्लोक में Yes. देखेंगे। सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यास्यामि मा शुचः। हरि बोल। So this is the conclusion to that question. हाँ, तो ये जो प्रश्न पूछा उसका हम यहाँ पे तात्पर्य निकाल रहे हैं, अंतिम तात्पर्य, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। Can और you कोई read? और पढ़ना चाहता है? कोई और? जी प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए आप। हाँ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरि बोल। तात्पर्य? हरि No, बोल। नहीं, एक no, मिनट रुक जाइए माता जी। no need taparya. Okay. So any other questions? और कोई हाँ, प्रश्न है किसी के पास? मेरी तरफ से हाँ माता जी बोलिए। अध्याय 10 में विष्णु भगवान के कई रूपों का चित्रण किया गया, 3 रूपों का। इससे पहले भी 3 रूप बताए गए हैं। तो मैंने जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि विष्णु के कितने रूप है और उनके क्या क्या गुण है। Okay. So Mataji is asking Prabhu that in the 10th chapter, when she reads, then she is reading that Lord Vishnu has 3 forms. So when she reads, then sometimes she is in doubt that how many forms does Lord Vishnu or Lord Krishna have. So that is her question. Lord Krishna has unlimited forms that you cannot even count. प्रभु बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं, जो जिसकी आप संख्या भी आप गिनती नहीं कर सकते। He has taken so many avatars that you cannot count. हाँ, उन्होंने इतने अवतार के रूप में इतने जन्म लिए हैं कि आप उसकी संख्या, आम इंसान वो संख्या उसकी गिनती नहीं कर सकता। Can you go to 10:51:36? हम अब श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं 10वें कैंटो में। Yes, ma'am. प्रभु, राइट? Yeah, 10:51:36. हाँ, 51 नंबर अध्याय में जा रहे हैं हम और 36 नंबर श्लोक में जाएंगे। कोई और प्रभु माता जी पढ़ना चाहते हैं? माता जी आप बरेली से जुड़ी हुई हैं, आप देख सक रही हैं हमारे स्क्रीन, पढ़ना चाहेंगी? सुन सकती हैं हमको? नहीं सुन सकती हैं शायद। और कोई प्रभु या माता जी पढ़ना चाहते हैं? मैं कंटिन्यू करती हूँ। Since she asked the question, she can read. हाँ, एकता माता जी पढ़िए। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ।
वस्तुतः मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। हरि Next, बोल, next verse, हरि बोल। next verse, next verse. अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। यह संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना कई जन्मों में कर ले, किंतु मेरे गुण, कर्म, नाम तथा जन्मों की गणना कोई भी कभी पूरी नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। Next verse. हे राजन, बड़े से बड़े ऋषि मेरे उन जन्मों तथा कर्मों की गणना करते रहते हैं जो काल की तीनों अवस्थाओं में घटित होते हैं, किंतु वे कभी उनका अंत नहीं पाते। अच्छा, हरि बोल। But the answer? यस यस। आपको उत्तर मिला प्रश्न का, माता जी? हाँ हाँ, पर विष्णु में जैसे महाविष्णु है, इसके बाद फिर परम विष्णु है, इसके बाद फिर और आगे अगर 10वें अध्याय में विष्णु के रूप अलग अलग बता दिए तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन आ गया था मेरे माइंड में। आनंद लीला प्रभु। यस प्रभु जी, मेरे ख्याल से वो अवतारों के बारे में पूछ रही, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, सख्यावतार, वो सब 3 जो गुणावतार हैं वो सब के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं। ओके, आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे प्रभु के लिए? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। Ji asked for the avatar, like all the guna avatars, Leela avatar, Sakya avatar, all those. So all in this verse it already says that so many avatars have taken. Difficult to count all of them. Avatar, Brahma, Vishnu, Mahesh. Yeah, all so many avatars. Leela avatar, Purusha avatar, Sakya avatar, Manvanta avatar. So we have just said briefly that all these avatars are going on perpetually. It's impossible to count them or even to list them. हाँ, तो प्रभु यही दोहरा रहे हैं जो अभी देखा हमने श्लोक में कि इतने सारे अवतार हैं कि इनकी संख्या को गिनना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। So if you want to know more, you can read the Chaitanya Charitamrita, chapter 21. अगर माता जी आप और जानना चाहती हैं तो आप चैतन्य चरितामृता में मध्य लीला में आप 21वें अध्याय को पढ़ सकती हैं। मध्य लीला 21वें अध्याय को, और मैं चैट में आपके लिए लिखता हूँ। I think for her this is enough. हाँ, अभी माता जी इतना आपके लिए काफी है? हाँ माता जी? प्रभु, हाँ प्रभु। हाँ ठीक है, अभी माता जी सेटिस्फाइड है। इसका PDF मिल जाएगा प्रभु? हाँ माता जी मिल जाएगा। हाँ, धन्यवाद। So anything else before we wrap up? और कोई प्रश्न है किसी का हमारे समाप्त करने के पहले? I guess. Thank you very much. दंडवत प्रणाम सभी का। अंकिता माता जी आप जुड़ी हुई हैं अभी भी हमारे साथ? आप सुन सकती हैं हमको? Yes, Prabhu, yes. Would you like to just give a small vote of thanks today from your side? Mayan wants to give a vote of thanks today. So Okay. as he was not able to read, so he wanted to. Okay, okay. So Prabhu, if you are okay, we'll just give a small vote of thanks from Mayan. He also asked the first question. So Yes. is that please. okay, Prabhu? No problem. Mayan आप प्रभु जी, I just इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप, इसके बाद हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। Sure. Prabhuji, thank you so much for such a beautiful answer explained, because there were so many doubts, and it brings us so much of clarity, and the kind of patience you have shown. It's really very humble to see the answer and how it has transformed and helped us to come closer to the deity that we worship. So I'm very thankful and obliged for the time and the patience and the effort taken out to share the answer. And thank you, Anand Prabhuji. Because of you, you are the binding source. And because of Guruji, we are able to follow the path that we want to cherish on. And we hope this bond continues. So this is what I Hare wanted Krishna. to say. Hare Krishna. Krishna. Thank you Hare so Krishna. much. I hope you will take it up more, if you can take up the process of chanting
And Yes. you know, नीचे को दबा देते हो this will be very encouraging. Yes, Prabhuji, I'm doing that. I'm slowly but steadily on the path. Now you should try to help others also understand this, no? Yes, surely, Prabhuji. I Yeah, will. if you can share this video with others, you know, I think many people will get to know, you Surely, know, Prabhuji. Surely, Prabhuji. how important this Vedic literature, the treasure of India, you know, it is locked away, you know. Absolutely, absolutely. People have forgotten about it, and through these mediums and platforms, and through your blessings, we are glad and we are like honored and kind of that we are able to see and Thank you. Try take to this bring, path. now we only got about 20, 25 people. I think we should make it 200. Sure. प्रभु कह रहे हैं Absolutely. सबसे कि आप लोग सबको जिनको भी अच्छा लग रहा है, और मेरी तरफ से भी विनती है कि आप एक एक करके दो दो करके और भी अपने साथियों को बुलाएं, उनको क्लास में लेके आए. एक दो से भी अच्छी शुरुआत होगी. मयन प्रभु, आप जल्दी से अनुवाद करना चाहते हैं अपना वोट ऑफ थैंक्स ब्रीफली हिंदी में सबके लिए? मैं बस यही मैं कह रहा था कि आज प्रभु जी ने जिस संवेदनशीलता से और उस पे इतना ध्यान देके जो अपना वक्त देके जो उत्तर दिए हैं हमारे संशय को या हमारे जो मन में प्रश्न है उनको दूर करने की कोशिश की है, वो आई एम रियली हम्बल एंड मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए कृतज्ञ हूँ. और आनंद प्रभु जी के माध्यम से हम इसमें जुड़े हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम से. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने अभी अपना जो पाथ चुना है, हमें प्रभु श्री हरि के चरणों में जाने का और मार्गदर्शक बनेगा. तो बस इसी ऑब्जेक्टिव से, इसी उद्देश्य से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ हम सब की तरफ से. थैंक यू सो मच मयन प्रभु. और सबसे मेरा यही निवेदन है दैट आप एक एक करके दो करके और लोगों को लेके आइए. आप आगे YouTube वीडियोस को शेयर कीजिए. आप देखिए प्रभु कितना समय दे रहे हैं और कितने उत्साह से हमको समझाते हैं. आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग प्रभु एवरीवन दैट यू नो दे शुड आल्सो स्प्रेड द मैसेज टू देयर फ्रेंड्स एंड दे हैव द Zoom links and they should pass it on. If everyone can also get one or two more people, then we have a good audience which comes through. You are so kind, Prabhu, that you give us your precious time, and with all the enthusiasm that you share all of these learnings to us, we are extremely indebted and grateful to you, Prabhu. Our request is also, please try, if you have not got yet, a book about Bhagavad Gita written by Srila Prabhupada, and this will help you understand much more. Huh? आप श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक इसको ऑर्डर कीजिए. आप यहाँ पे आप देखिए माता जी नंबर बता रही हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और फिर हम आपको आपके घर पे ये किताब भेज सकते हैं. जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप में, आप मुझे अलग से व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अक्षय प्रभु को बोल के, या फिर आप इस नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं. आप किताबें पढ़िए श्रीला प्रभुपाद की, फिर आपको और भी ज्ञान प्राप्त होगा. All the knowledge that I'm speaking is only from him only, and it is from his books. So you read every day, how much benefit you will get. प्रभु ये बता रहे हैं कि प्रभु जो भी ज्ञान बांट रहे हैं वो सब श्रीला प्रभुपाद की वाणी है, उनकी किताबों से है. तो आप देखिए, अगर आप खुद रोज इस किताब को थोड़ी भी देर पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान कितना आगे बढ़ेगा. I'm sitting here in Singapore. Similarly, so many others from outside India are reading these books and making so much advancement. So you being Indians, I think this is most beneficial for you. It's a must. प्रभु सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, आपको ज्ञान बांट रहे हैं. बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में इसको पढ़ रहे हैं, मगर आप सब भारतवासी हैं, भारत में बैठे हैं, वहीं से ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है. तो आप देखिए, अगर आप पढ़ेंगे और इस तरह से कितने लोगों को कितना लाभ होगा. तो प्रेरित कर रहे हैं प्रभु आपको कि आप श्रीला प्रभुपाद की किताबें मंगवाएं और उनको पढ़ें. So if you have not got one, please, the number is there. You please order and they will send it to you. आपके पास अगर नहीं है तो आप ये नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए और अपनी कॉपी मंगवाइए इस नंबर से. Thank you again. Thank you for your kind association. Hare Krishna. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
और All इसके साथ ही glories to Prabhupada. Hare all Krishna. Krishna all Prabhu, glories Hare to Srila Krishna Prabhupada. Prabhu. Hare Hare Krishna Krishna Prabhu. Prabhu. Hare Thank you very much, Hare Prabhu. Krishna, Thank you very Krishna much. Krishna, I will Hare close the Hare. meeting. you, अब मैं Prabhu. ये सत्र को खत्म करूंगा. धन्यवाद.